Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Hello, welcome students. Start करते हैं problem set 2. Question number 1. Some questions and their alternative answers are given. Select the correct alternative. MCQ type questions. बच्चों, see first, out of the following, which is the Pythagorean triplet? You know Pythagorean triplet. If I consider suppose 8, 6 and 10, right? 10 का square should be equal to 6 square plus 8 square. Then 6, 8, 10 is said to be Pythagorean triplet, right? यहाँ पे वही करना है बच्चों, डिसाइड करना है कि चारों में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. देखो बहुत इजी है. अगर हम फर्स्ट ऑल्टरनेटिव लेते हैं तो क्या होता है, देखिए 1, 5, 10. 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर होता है 100 बच्चों, राइट. एंड 1 and 5 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये होगा 1 plus 25 विच इज इक्वल टू 26. आर दे इक्वल? नो. सो ये तो नहीं हो सकता है, राइट. थिंक अबाउट 3, 4, 5. लार्जेस्ट साइड कौन सा है? 5. 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, राइट. एंड रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 9 plus 16. 9 plus 16 which is equal to 25. Are they equal? Yes. So this is the option. So क्या मिलेगा आपको आंसर? ऑप्शन बी 3, 4, 5. राइट बच्चों, एक आंसर मिलने के बाद बाकी का दो चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्लियर. सेकेंड सम स्टूडेंट्स, in a right angled triangle, if the sum of the squares of the sides making right angle is 169, then what is the length of hypotenuse? See students, if we consider any right angled triangle, according to them, suppose ABC is a right angled triangle and sum of squares of two sides making right angle means AB square plus BC square, ये दोनों का सम दिया है 169. Then find the length of hypotenuse. You know, in right angle triangle AB square plus BC square is equal to AC square ना, तो AC square भी कितना होगा? 169. पाइथागोरस थ्योरम, राइट. तो AC का लेंथ कितना? 13 सेंटीमीटर और 13 यूनिट जो भी है, राइट. सो आंसर क्या होगा? बी. सो आंसर बी 13. Easy, clear. Now third sub question students, out of the dates given below, which date constitutes a Pythagorean triplet? मतलब तीन तीन नंबर्स दिए इनडायरेक्टली उन्होंने और हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिलेक्ट करना है. पहला सिलेक्ट कीजिएगा 15, 8 एंड 17. देखते हैं हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 17. 17 स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा? 289. रिमेनिंग टू नंबर्स मतलब 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 225 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 289. यस, दोनों नंबर सेम है. इसका मतलब ये जो डेट है 15, 8, 17, राइट. सो दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इजी. Fourth sub question students, if ABC are sides of triangle and A square plus B square is equal to C square, name the type of triangle. बच्चों बहुत इजी है, आपको पता है. अगर ऐसा है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसमें A है, B है और C है, राइट. According to them, C is the largest side, right. यहाँ पे sum of the squares of these two sides is equal to C square. It means C is the largest side, right. So C square is equal to A square plus B square. Then no doubt this triangle is 90 degree, converse of Pythagoras theorem, right. So ये triangle कौन सा होना चाहिए? Right angle triangle. So this is the answer. So answer क्या होगा बच्चों? Answer C, right angle triangle. क्लियर बच्चों? फिफ्थ,
Find the perimeter of a square if its diagonal is 10 root 2 centimeter. Options are 10, 40 root 2, 20 centimeter and 40 centimeter. बच्चों ये हम दो तरीके से कर सकते हैं. अगर ये स्क्वायर है, देखिए सपोज दिस इज स्क्वायर और डायगोनल दिया है 10 रूट 2. मान लीजिए ये स्क्वायर का साइड क्या है, x, राइट. सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर is equal to 10 root 2 the whole square, right? Pythagoras theorem. We have selected this particular triangle. So 2x square is equal to क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100, root 2 का स्क्वायर 2, 2 क्या होगा, कैंसिल आफ्टर डिवाइडिंग. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो x क्या होगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर. मतलब साइड हुआ 10 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10. तो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर. इजी वे हो गया. कौन सा, डी. डी इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, राइट. और दूसरा मेथड चाहिए तो एक फॉर्मूला है बच्चों, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू रूट 2. तो डायगोनल ऑलरेडी दिया है उन्होंने, 10 रूट 2 इज इक्वल टू साइड इंटू रूट 2. रूट टू डिवाइड होके कैंसिल होगा तो साइड मिला 10 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 10, दैट इज 40 सेंटीमीटर. So which option? D. Either you can use this method or this method. Here, understood? Sixth sum, students. Altitude on hypotenuse of a right angle triangle divides it in two parts of lengths 4 centimeter and 9 centimeter. Find the length of altitude. Students, you know, if this is a right angle triangle, see. And this is the altitude drawn on hypotenuse, right? This particular altitude divides AC in two parts. Lengths of each part is given 4 and 9, right? Then length of this altitude is equal to, you know, geometric mean theorem. उसमें क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, देन BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, राइट. ये था ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम. मीन्स 4 इंटू 9 36, राइट. BD स्क्वायर इज इक्वल टू 36. तो BD कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, राइट बच्चों. सो अपना आंसर कौन सा होगा. So finally answer C, 6 centimeter. Understood, students? Yes, students. Height and the base of right angle triangle are 24 centimeter and 18 centimeter. Find the length of hypotenuse. In a right angle triangle, we know, students, if this is a right angle triangle, एक परपेंडिकुलर साइड बेस रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, हाइट रहेगा. और पहला हाइट रहेगा तो दूसरा बेस ले सकते हो. तो ये 24, ये हुआ 18, और हमें ढूंढना है हाइपोटेनियस. अगर ये एबीसी ट्राइंगल है तो क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. 324 प्लस 576. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 900. तो AC कितना होगा बच्चों, बोलो, 30 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑप्शन इजी. हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम. इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to 6 root 3, AC is equal to 12 centimeter, BC is equal to 6 centimeter. Find the measure of angle A. बच्चों बहुत ही इजी सम है. देखिए इसमें हम एक ट्राइंगल लेते हैं. सो इन ट्राइंगल ABC, इसमें AC इज द लार्जेस्ट साइड. देखो AC कितना है, 12 सेंटीमीटर. AB दिया है 6 रूट 3 सेंटीमीटर एंड BC दिया है 6 सेंटीमीटर. नाउ
पहले तो हमें डिसाइड करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं. देखिए, यू नो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, राइट. और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 द होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. यू नो 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 36, 108 प्लस 36, so 144 आया. ये सब ना बच्चों. So by converse of Pythagoras theorem, this particular triangle is a right angle triangle. You know, angle B is 90 degree, right? Side opposite to the greatest side. ठीक है. Now we have to find measure of angle A. तो आपको पता है 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम देखा था हमने कि साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस, राइट. अभी इसमें देखते हैं कि ए के अपोजिट वाला साइड, हमें ए ढूंढना है तो ए के अपोजिट वाला साइड और हाइपोटेनियस का रिलेशन देखते हैं हम. इफ वी टेक BC अपॉन AC, देखो BC अपॉन AC क्या हो रहा है 6/12 which is equal to half, right? Means this particular angle A is how many degree? 30 degree. Converse of 30, 60, 90 degree theorem बच्चों. तो A is the option. So आंसर क्या रहेगा? आंसर A 30 degree. Understood students? Easy? Thank you for watching Top Maths.